कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपको लगता है मेरा शब्द ही सब कुछ है, बट एब्सोल्युटली इट्स नॉट द राइट लैंग्वेज एंड द टोन दैट मैटर्स. द टोन ऑफ द आई लव यू इज डिफरेंट, द टोन ऑफ द आई हेट यू इज डिफरेंट. वो गया किसी लड़की के ऊपर हाथ रख दिया और ऐसे कर दिया, ये इंटीमेट टच हो. आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ कर सकते हैं जो आपसे, मैं बॉडी टू बॉडी टच रह सकता हूं, बट फॉर इंडिया में जाके किसी लड़की को हक करता हूं तो मुझे कभी, जैसे कुछ लोगों को कंधे पे आप हाथ रखते हैं तो दे फील गुड, वो उनको अच्छा लगता है. कुछ लोगों के कंधे पे हाथ रख दो उनको अजीब सा लगने लगता है. उसमें हम एकदम से कंफर्टेबल हो पाए. और हमारा एज अ स्टूडेंट हम सबका ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जीडी एंड पीआई, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. So today we are going to actually understand that how to participate in any GD or in any PI. किसी भी GD और किसी भी पर्सनल इंटरव्यू में कैसे पार्टिसिपेट किया जाए and how to involve and how to crack it. That's very important. So first of all, when you talk about group discussion, जब आप ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, so it is all about you have a group and you are also one of them. And when you have a group, it means you have a crowd. And when you have a crowd, you have to be just individually smart. You have to be uniquely smart. That is what you have to do. So same way, living in India, having 1.40 billion or having 1.4 billion population, so you have to be out of the group because you are in a group. सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको 8 से 10 लोग का ग्रुप होगा, 4 से 6 लोग का, 15 लोग का, 12 लोग का ग्रुप होगा, और दुनिया में आपके पास जो है कि 7.8 बिलियन का ग्रुप है. ग्रुप तो हर जगह आपको मिलेगा एंड यू हैव टू बी आउट ऑफ द ग्रुप. आपको ग्रुप से बाहर निकलना. तो किसी भी ग्रुप में बैठ के अपनी राय को रखना, बात को रखना, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन. एंड दिस ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, जो हमने बात कर ली है. व्हाई दिस ग्रुप डिस्कशन and how to actually qualify the group discussion and PI. These are important questions. So group discussion, what is group discussion? It's all about sitting in a group and talking and putting some points, right? Expressing your views and points about something. When you talk about why is it important? It is important to check and test your analytical skills, your reasoning skills, your communication skills, your leadership skills, your confidence actually, and your professionalism or professional skills. तो आपकी हर स्किल को चेक करने के लिए यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ग्रुप डिस्कशन में आपको बैठा देते हैं. क्योंकि अगर हम 1-to-1 करेंगे तो वहां पे तो आप जो है कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस करके निकल आएंगे, बट जैसे ही आप अपने बराबर के ग्रुप में बैठते हैं आपका वो शैतान अपने अंदर से जागता है एंड यू जस्ट बस्ट इनटू इमोशंस. आप भावनाओं में बह जाते हैं एंड आफ्टर दैट जो नहीं कहना रहता वो कह देते हैं और कंपनी से बाहर निकल के रोते हुए वापस चले आते हैं. Especially in the CAT, in the CLAT, in the MBA, in the big universities, in the colleges, in the interviews, in the MNCs, multinational companies, for the jobs, everywhere there is GD and PI. And that is why you have to be extra smart. आपको extra smart होना पड़ेगा. Got it? अब चलते हैं सबसे most important चीज पे, हाउ पे बात करते हैं. अब हाउ पे आपको कुछ चीजें आपको समझना होगा. आपको समझना होगा, you have to understand about your sitting. You have to understand about your standing. You have to understand about your body language. You have to understand about your touch. You have to understand about your gesture. You have to understand about your posture. You have to understand about your tone. And you have to understand about your info. And you have to understand about your style. Overall, what you have to understand each section and each point. How you are sitting, what kind of sitting style you have, किस तरीके का sitting style है. Are you sitting with this lazy body language that nobody is being impressed? You are just flexibilizing your body language. That's really not good, right? So always sit in a proper way. I know you may have problems, body may be weak, right? You may have malaria, lavaria, typhoid, all right, glucose issues and all these, right? But it's okay. So what do you need to do? Sit always in a professional way, in a straight way. That's important. Stand always in a professional way and, like in a stylish way.
And for example, sometimes what happens that if we just have lack of contents and lack of confidence, अगर हमारे अंदर किसी चीज की कमी होती है तो हमारी आंखों में नमी होती है, बॉडी में उसी तरीके से ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसे खड़े होंगे, या तो हमारे माइंड में अपना खुराफाती शैतान चल रहा है कि मैं तो सबसे अच्छा हूं, तब आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होगा। दोनों गलत है, ना आप अकेले हैं ना आप सबसे अलग हैं, आप लोगों से हैं, बस लोगों से अच्छा थोड़ा बनना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो आपको स्टैंडिंग अपनी स्ट्रेट रखनी है। बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो क्योंकि जो आपका सर्वे कहता है 7% आप अपनी बातें शब्दों से समझाते हैं, 38% अपनी बातें आप टोन से समझाते हैं और 55% अपनी बातें आप बॉडी लैंग्वेज से समझाते हैं। तो आप जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपको लगता है मेरा शब्द ही सब कुछ है, बट एब्सोल्युटली इट्स नॉट द राइट वे। आप आई लव यू किसी को बोल दिए, किस तरीके से बोले दैट मैटर्स। आपने बोले आई लव यू, कौन सा आई लव यू भाई, व्हाट टाइप ऑफ आई लव यू इज दिस। और आपने बोला आई लव यू और घूम के बोला आई लव यू, फिर घुटने पे बैठ के बोला आई लव यू, तो घुटने वाले पे तुरंत जो है कि मामला हो जाएगा। इट विल बी इंप्रेसिव, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब कहने का मतलब द बॉडी लैंग्वेज एंड द टोन दैट मैटर्स। The tone of the I love you is different. The tone of the I hate you is different. The tone of the I like you is different. The tone of the I dislike you is different. So that is why you have to just keep in your mind कि आपका किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज है। टच में 4 तरीके का टच होता है। आपको प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल में आपको टच समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से टच करना है, क्या टच होता है। तो यू हैव टू मूव फॉर द 4 टाइप्स ऑफ टच। सबसे पहला टच है इंटीमेट टच। Another is the professional touch. The third is the social touch. The fourth is the public touch. So there are 4 types of touch. जब भी आप कहीं पे किसी के जहां जाते हैं, बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, कहीं मीटिंग में जाते हैं, 4 तरीके का टच है आपकी लाइफ स्टाइल में। आप सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई टीचर है, वो गया किसी लड़की के ऊपर हाथ रख दिया और ऐसे कर दिया, अब ये गलत टच हो गया, ये इंटीमेट टच हो गया। और इंटीमेट टच जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ कर सकते हैं, जो आपसे क्लोज है, जिसका आपके साथ फिजिकल रिलेशन है, उसके साथ आप इंटीमेट टच में रह सकते हैं। इंटीमेट टच का जो होता है वो 0 इंच से लेके 18 इंच तक डिस्टेंस होती है। मतलब कि मैं ऐसे भी रह सकता हूं, मैं ऐसे भी रह सकता हूं, मैं थोड़ा दूरी हल्का से बना सकता हूं, बट मैं बॉडी टू बॉडी टच रह सकता हूं। बट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू टच समबडी, मैं अगर किसी को टच करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे उसके कल्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, मुझे उसके थॉट प्रोसेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, मुझे उसके रिलीजन धर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है, मुझे उसके जो है कि एक तरीके से स्टेट ऑफ माइंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और मुझे उसके ओवरऑल बायो के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल मैं किसी को भी, इफ आई एम गोइंग टू टच समबडी, मैं किसी को भी टच करने जा रहा हूं, सो आई हैव टू अंडरस्टैंड द इंटायर सिनेरियो। इंटायर सिनेरियो मुझे समझना पड़ेगा। मैं इंडिया में जाके किसी लड़की को हक करता हूं तो मुझे कभी हो सकता है फूल बरसे तो कभी सैंडल भी बरस सकती है। मैं अमेरिका में गया, टच किया, हो रहा हाय कूल बेबी, कूल है, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट, बिकॉज इट्स ओके, ऑलराइट। और वहीं पे गांव में अगर किसी को टच कर दिए तो फिर तुम्हारा सर पैर सब टूट जाएगा। एंड दैट इज वाई आपको उसके कल्चर के बारे में समझना होगा। व्हाट टाइप ऑफ कल्चर इज देयर, किस तरीके का कल्चर है, What type of thought process he or she is having, किस तरीके का थॉट है। रिलीजन, जैसे कुछ लोगों को कंधे पे आप हाथ रखते हैं तो दे फील गुड, वो उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग के कंधे पे हाथ रख दो उनको अजीब सा लगने लगता है, जट से निकल जाते हैं या आपका हाथ फेंक देते हैं। तो आपको उसको एक बार हाथ फेंक दिया दोबारा मत रखो, बिकॉज ही फील्स अनकंफर्टेबल, राइट। दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये टच बहुत जरूरी है। रिलीजन, उसका धर्म क्या है और उसके धर्म के अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं। जैसे देखिए, हिंदू रिलीजन कहता है नमस्ते, मुस्लिम रिलीजन कहता है अस्सलाम वालेकुम, लेकिन उस अस्सलाम वालेकुम में अब आप मेल हैं तो मेल को अस्सलाम वालेकुम करके हाथ मिला सकते हैं और गले लगा सकते हैं, फीमेल को नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अस्सलाम वालेकुम हबीब, यस प्लीज हबीबी, खचाक, हम सुधरेंगे नहीं कभी भी, ऑलराइट। So that's exactly the problem. So you have to keep in your mind what type of religion
what type of state of mind, what type of background, what type of bio, you all have to just study and then you have to give a touch. आपको एक touch देना है. Bio about जिंदगी, उसकी life क्या है, lifestyle क्या है, and you have to just know and understand about each and everything, right? अब for example आप सवाल करेंगे, sir, why the girls don't give you message? लड़कियां आपको मैसेज क्यों नहीं भेजती हैं? तो मैं कहूंगा कि because my state of mind is not that level. मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस लेवल का नहीं है, तो लड़कियां मुझे ऑब्जर्व करती हैं, सोचती हैं बंदा सीरियस है, इसको मैसेज देंगे, जवाब नहीं देगा, खत्म कहानी. तो बिकॉज गर्ल्स नो, अब वो स्टेट ऑफ माइंड को समझ गई है कि हाँ भाई इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है. तो सेम वे व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है. एंड नाउ मूविंग अहेड, एक बार चलते हैं आगे. तो या आपको जो डिस्टेंस है 0 to 18 इंच इंटीमेट डिस्टेंस, जब भी इंटीमेट वर्ड जहां पे भी आ जाए, दिस इज कॉल्ड इंटीमेसी. और इंटीमेसी का मतलब होता है रोमांस. और रोमांस आप जो है कि जहां के किसी के साथ नहीं करेंगे, वो आपका लाइफ पार्टनर होगा, उसी के साथ करेंगे, राइट. तो दैट इज कॉल्ड इंटीमेट डिस्टेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन. आफ्टर दैट वी हैव प्रोफेशनल डिस्टेंस. 18 इंच से लेकर 3 फीट तक ये आपका होता है प्रोफेशनल डिस्टेंस. आप जब भी किसी से प्रोफेशनली मिलिए, कभी कभी समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कभी कभी क्या होता है, वी स्टार्ट मीटिंग, इंटरेक्टिंग, टॉकिंग, हम बहुत ज्यादा क्लोज चले जाते हैं. ऐसा कभी कभी होता है, मैं उनके पैर पे पैर रख देते हैं, उसकी बॉडी से बॉडी टच कर देते हैं. बट ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस, एक्चुअली बैलेंस मेंटेन करिए. हाँ, अगर अलाउड है तो जरा गले तो लग जाइए, अगर अलाउड है, वो भी जरूरी है. अलाउड है तो टच बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब क्या अलाउड है वो देखना पड़ेगा आपको. तो ये हो गया प्रोफेशनल. तो 18 से लेके 3 फीट तक इट्स प्रोफेशनल. आफ्टर दैट यू हैव सोशल. 3 फीट से लेके 12 फीट तक जो डिस्टेंस होती है वो सोशल होती है. आप सोशली एक ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं, मेरे सामने विनीता बैठी है, क्या दूरी होगी? आई थिंक 12 से 12 हो सकती है. तो इतनी 18 है, यहां से लेके वहां तक 18 फीट. 15 है. अब यहां ज्यादा दूरी हो गई, क्योंकि अब मैं कोई अपनी बातें रखूंगा तो मुझे थोड़ा लाउड वाइज में रखना पड़ेगा. पलक इज ओके, लाइक 9 फीट होगी लगभग. ऑलराइट, तो इट्स कॉल्ड अ सोशल डिस्टेंस, सोशल टच. ये सोशल दायरा होता है और इसको हमें मेंटेन करना चाहिए. आप सब फॉर एग्जांपल, आप किसी से प्रोफेशनली मिल रहे हो और आपने क्या किया कि वो गेट पे खड़ा है, यहीं से बोले गुड मॉर्निंग, एंड व्हाट टाइप ऑफ दिस इज अ बैड मैनर, बिकॉज ही इज देयर एंड यू आर जस्ट वेविंग योर हैंड. व्हाट टाइप ऑफ मीटिंग इज दिस? ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल मीटिंग है. प्रोफेशनल मीटिंग में हमेशा चीज ध्यान दीजिएगा, जब वो आपके पास आ जाए 2 से 3 फीट की दूरी, 4 फीट की दूरी रहे, तभी आप उसको ग्रीट करिए. वहां है ग्रीट कर दीजिए, बट जब आए तो उसको प्रोफेशनली ग्रीट करिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपका आता है पब्लिक. पब्लिक में आता है 12 फीट से लेके जहां तक पब्लिक जाए, हमारे प्रधानमंत्री की तरह भाइयों और बहनों, पूरा समेट लो सबको. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन्फिनिटिव, राइट. 12 से लेकर इन्फिनिटिव, दैट्स कॉल्ड पब्लिक. यू अंडरस्टैंड? फिर से वैसे ही बैठ गए. कीप योरसेल्फ टाइट. ऑलराइट, टाइट रखो बॉडी को. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो अंडरस्टैंड इट. अब जैसे आप जो है बॉडी लैंग्वेज को अगर जो है फ्लेक्सिबल करते रहोगे, होती चली जाएगी, एंड इट विल बी योर हैबिट, आपकी आदत हो जाएगी. सो डोंट मेक इट अ हैबिट. आदत मत बनाओ, आदत बहुत बेकार चीज होती है. ये 4 तरीके का टच समझ में आ गया. यू हैव अंडरस्टूड द 4 टाइप्स ऑफ टच, राइट. एंड मैंने आपको देखा है, जब आप बात करते हैं, अभी हम ग्रुप डिस्कशन पे, पर्सनल इंटरव्यू पे आ रहे हैं, अभी हम अगल बगल के दायरे की बात कर रहे हैं. जब आप बात करते हैं ना, तो आपका बात करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, या तो आपका ये होता है, आप कहां किस तरफ मुंडी किए हो, किस तरफ पैर किए हो, किस तरफ बोल रहे हो, दैट इज एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स. I never assume you never observe you like talking professionally, right? When you are talking each other, you first of all make face to face, right? Interaction, that's very important. But what you do, you don't do that. You're like, oh my God, okay, fine. ऐसे बैठे हैं, कहीं ऐसे बैठ गए, घूम के बैठ गए, पैर फैला दिए. अरे नहीं सरकार, 2 घंटे आए हो तो 2 घंटे जियो दुल्हन और दूल्हे की तरह. Alright, that's important. और आप क्या होते हैं, नहीं करते, तो प्लीज मेंटेन इट. हमेशा इस तरीके से बैठने की कोशिश करिए. चेयर घुमाना पड़े घुमा लीजिए, आप मत घूमिए प्लीज, ठीक है. तो ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा. मूविंग अहेड, आगे चलते हैं. वी आर कमिंग टू द टच. टच में हमने 4 टाइप्स ऑफ टच की बात की. आफ्टर दैट वी हैव जेस्चर. एंड नाउ व्हाट अबाउट जेस्चर? सबसे पहले हमारे साथ जो मैं आपको देख पा रहा हूं, वी हैव अ बिग प्रॉब्लम इन द जेस्चर. आइदर we have zero gesture or we have extra gesture.
अब बोलना है आइसक्रीम तो इतना उछल जाएंगे, आइसक्रीम आइसक्रीम, अरे इतना क्या है, एक आइसक्रीम है तो उसका एक जेस्चर जो होगा, ओहो हो आइसक्रीम, दैट्स सो टेस्टी सर, दैट्स नाइस सर, ऑलराइट, आइसक्रीम, अरे रिलैक्स यार, आइसक्रीम खाओगे, अब आइसक्रीम आपकी फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती, आइसक्रीम खा लेंगे। आप जरा सोचो कि कोई बहुत प्यार से पूछा है, 50-100 रुपया खर्चा करना चाहता है आपके लिए, हाँ खा लेंगे आइसक्रीम। यार प्रभु जब उस इंटरेस्ट के साथ पूछ रहा है तो आपको भी श्योर आई विल हैव आइसक्रीम, यस दैट्स नाइस, आज मैं आपको दावत दे रहा हूँ घर पे, हाँ श्योर आई विल कम, मैं आऊंगा, राइट बिल्कुल दीजिए, आन का दाना तान के खाना, मर जाना परवाह ना करना। तो दैट इज लाइक दैट, यू नो, हमारे आजमगढ़ में कहा जाता है। तो gesture is very important. Please don't go with the extra and don't go with zero. Just be the mid and be hero. And that is what you have to understand. What you have to keep, that gesture should be according to the topics and according to the points and according to the professionalism. अब यहाँ पे दो तरीके का आपका लाइफ मिलेगी। एक मिलेगा आपको कैजुअल इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप जेस्चर अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। फिर आपको दूसरा मिलेगा प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आप ध्यान दीजिए, वहां पे आप कर क्या रहे हैं, क्या आप जीडी में बैठे हैं, क्या आप पीआई में बैठे हैं, क्या आप सिर्फ इंटरव्यू में बैठे हैं, क्या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब हर चीज में मायने रखेगा आपका जेस्चर। अगर आप जीडी में हैं और जेस्चर यूज नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हैं मिड जेस्चर यूज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, आई वुड लाइक टू मेंशन, आई वुड लाइक टू टेल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज है, वो चीज है, जो भी आप तो प्रोफेशनली आप जो है कि जेस्चर देंगे। पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा और कम करेंगे और एकदम फेस टू फेस इंटरव्यू में जेस्चर और कम कर देंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन में 100% बोले तो जेस्चर यूज करेंगे, बिकॉज प्रेजेंटेशन आपका फुल ऑफ जेस्चर होना चाहिए। जब आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फुल ऑफ जेस्चर उसमें दिखना चाहिए, इट शुड बी देयर, यस यू अंडरस्टैंड दैट। सिंपल में आपका आता है एक हैंड्स आ गया, राइट, आपका शोल्डर श्रग आ गया, शोल्डर श्रग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना कंधा ना होता तो इंग्लिश का धंधा ना होता, दैट्स व्हाई यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड दैट दिस शोल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब शोल्डर, यस सर, आई एम फाइन सर, हाउ आर यू। कौन जॉब देगा इस बॉडी लैंग्वेज में, या तो अपनी कंपनी डुबो दे, एक तो आप हैं यस प्लीज। दोनों एटीट्यूड वाले इंसान को आप पसंद करोगे? एक में वो बहुत लेजी है, वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, एक वो बहुत एटीट्यूड वाला है, वो आपकी कभी सुनेगा नहीं। दोनों गड़बड़ है। एक मिड वाला है, यस प्लीज, यस प्लीज, ऑलराइट, yes please, this is very important, आदान प्रदान, right? So that's why you have to keep it very soft but full of attitude. आपको अपने जेस्चर में हमेशा एक एटीट्यूड दिखाना है कि yes I am, मैं जिंदा हूं, और वो जिंदगी का आपको एटीट्यूड दिखाना है। उसके बाद the next point comes posture. Posture is very important. आप किस तरीके से अपना पोस्टर, टाइप ऑफ पोस्टर यू आर मेंटेनिंग, आप किस तरीके का पोस्टर मेंटेन कर रहे हो। आप समटाइम्स आई सी, कभी कभी मैं देखता हूं लोग बैठे हैं, अब बगल में कोई इंसान बैठा हुआ है, उसको ये क्या बोलता तू, आप समझ रहे हो, ये डायरेक्ट आपके जो लेफ्ट साइड में बैठा है, पूरे जूते के नीचे आपके क्या लगा होगा यू डोंट नो, आप नहीं जानते, डायरेक्ट हो जा रहा है उसकी आंखों में। अब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड ये है, आप बैठे हैं बॉडी लैंग्वेज के साथ and you're talking about something. Okay, ladies and gentlemen, my name is Abdullah. Today I'm going to explain you about this, that how can you build your confidence. आप इस तरीके से बैठे हैं, okay, I'm going to explain you about the confidence building, right? और इस तरीके का आपका पोस्चर हो सकता है। तो पोस्चर शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट, आपका स्ट्रेट होगा। लड़कियों का ये पोस्चर हो सकता है, लड़कों का गैप होगा, ये पोस्चर हो सकता है, ये थोड़ा मेंटेन रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज, स्ट्रेट पोस्चर होगा जब भी होगा, बहुत लीन बैक नहीं होगा, बहुत लीन फ्रंट नहीं होगा, ये सिटिंग। स्टैंडिंग पोस्चर विल बी ऑलवेज स्ट्रेट, having 1 feet distance or 1.5 feet distance. Like for example, if you stand like this, that day I was explaining to Amrit, please don't do it, right? If you're standing like this, so you are tedha from downstairs, from downside, right? So don't be tedha, all right? Be सीधा, be straight. और ये चीज हमेशा लाइफ में मेंटेन करो, देखो मजा आएगी आपको। ऑटोमेटिक एटीट्यूड मॉडलिंग में हो ना, रखो, और पोस्चर के हिसाब से आपको ऐड मिलेगा।
पोस्चर जैसा रहेगा। पोस्चर गड़बड़ रहेगा, चूहे की दवा, कॉकरोच की दवा मिल जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, यू विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सम मॉडलिंग इंस्टीट्यूट्स एंड मॉडलिंग एजेंसीज, सम ब्यूटीफुल गर्ल्स एज वेल, राइट? ओके, गॉट इट। मूविंग अहेड, तो पोस्चर आपका पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लीन बैक नहीं होना चाहिए, लीन फ्रंट नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आते हैं अपने मेन ग्रुप डिस्कशन पर। वी आर कमिंग टू द मेन ग्रुप डिस्कशन, राइट? अब ग्रुप डिस्कशन में जैसे ही आप बैठते हैं तो आपको यहां पे एक फॉर्मूला ध्यान देना है, स्टॉप। स्टॉप का मतलब स्टॉप, थिंक, ऑर्गेनाइज, प्रोसीड। स्टॉप, थिंक, ऑर्गेनाइज, प्रोसीड। हमेशा रुको, सोचो, ऑर्गेनाइज करो, फिर बोलो। हम तड़ से बोल दिए, खत्म कहानी। और जो निकल गया आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो प्लीज स्टॉप, थिंक, ऑर्गेनाइज, प्रोसीड। प्रोसीड इज द लास्ट ऑप्शन। हमारे साथ उल्टा होता है, हम इतने एक्साइटेड है अंदर से ना, प्रोसीड को पहले ला देते हैं, फिर स्टॉप करते हैं। पहले प्रोसीड कर दिया, फिर स्टॉप करेंगे। वही हाल हो गई ना, पहले तो भाग गए साथ में, और जब पता क्या चला, जब 5,000 रुपए लेके भागे तो खत्म हो गया। अब स्टॉप कर रहे हैं, काश ना भागते तो पापा दे देते। अब वही होगा, ऐ सनम तुम भागे थे, ऐ सनम वापस आ जाओ। मतलब दैट इज व्हाई यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि भैया स्टॉप, then think, then organize, then proceed. So these things you have to keep in your mind. And in your GD, please try to use easy words. ये हम बहुत अक्सर क्या करते हैं, बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं। हमें लगता है ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए हार्ड वर्ड्स और हार्ड फ्रेजेस यूज कर लें। नो, आपकी भाषा अगर किसी को समझ में ना आए तो आप समझ लीजिएगा कि आप डाउनफॉल आपका आ रहा है। भाषा इज टू कन्विंस, नॉट टू बी ओवर स्मार्ट। भाषा समझाने के लिए होती है, ये और स्मार्ट बनने के लिए नहीं होती। तो कुछ लोग ऐसे बहुत से मैंने देखे, फ्रेज रट लेंगे, वर्ड बड़े बड़े रट लेंगे, और जब कहीं उनको ऐसा कुछ करना रहेगा वही चिपका देंगे, और अंदर से खोखले होते जाएंगे। नॉलेज नहीं है, 4 वर्ड रटे, चिपका दिए। दैट्स रियली वेरी बैड। सो प्लीज यूज इजी वर्ड्स, यूज इजी फ्रेजेस, एंड प्लीज ट्राई टू अवॉइड योर EB, इमोशन बस्टिंग। इमोशन बस्टिंग इन योर GD, कभी भी ग्रुप डिस्कशन में, पर्सनल इंटरव्यू में इमोशन बस्टिंग कभी भी मत करिए। क्रिटिसाइज भी हुआ उसका कि क्या आप गाने का टैलेंट देख रहे हैं, रोने का टैलेंट देख रहे हैं। मेरे घर पे ऐसी दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा है, रो रहे हैं, उसमें मिलियन व्यूज जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट्स इमोशन बस्ट। अगर किसी भी जगह आपने इमोशन बस्ट किया, प्रोफेशनल इंसान कभी भी आपको हायर नहीं करेगा। ही विल रिजेक्ट यू। मेरे घर में बहुत दिक्कत है, मैं बहुत परेशान हूँ सर, मुझे रख लीजिए जल्दी से यहाँ पे, मुझे 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये दे दीजिए। नो, कुछ भी रहे, घर पे चटनी बनी रहे, पनीर खा के आ रहा हूँ, चिकन खा के आ रहा हूँ। यू हैव टू बी ओवर स्मार्ट। एटीट्यूड नहीं गिरना चाहिए, बट एटीट्यूड ओवर नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज EB, इमोशन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, आपको इंफॉर्मेशन चारों दिशाओं की होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप GD में बैठते हैं, अदरवाइज यू विल बी अ फेलियर, आप एक फेल हो जाएंगे। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, एंड इट मींस यू हैव टू हैव द इंफॉर्मेशन, बिकॉज नोबडी विल लिसन। आपको कोई नहीं सुनेगा इमोशंस, क्योंकि इमोशंस बहुतों के देख लिए गए हैं। इमोशंस की कोई दुनिया में जगह नहीं है, कदर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देयर आर 2 पीपल, 2 लोग हैं, विनीता, बबीता। और विनीता इज सेइंग, आई वांट टू से दैट India got freedom in 1947. That time India was facing a lot of problems, poverty, lack of literacy, but I would just want to say that India has developed under the guidance and the leadership of the current government, Bharatiya Janata Party. तो यहां से बबीता बोल रही, ऑब्जेक्शन, यू आर रॉन्ग, मोदी जी इज रॉन्ग, what is he doing for the country, and you shut up, you bastard, this and that, what's this BJP doing? अब यहीं पे आपका हो गया EB, इमोशन ब्लास्ट। मन में आपके भले से कितनी भी घृणा है सरकार के लिए, आप बोल नहीं सकते। मैं UPSC का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, उसमें बहुत हम लोग रुके और उस पर डिस्कस किया। आप क्या दे रहे हो? ब्यूरोक्रेसी का इंटरव्यू दे रहे हो, ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो।
आप सरकार के डायरेक्ट खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि सरकार के अंडर काम करना है आपको। हाँ, कुछ नीतियों पे जा सकते हैं बट विथ क्लेमेशन, विथ पेपर। तो जीडी में हमेशा ध्यान देना, यू हैव टू नॉट लाइक जंप लाइक अ कैट, लाइक अ फॉक्स, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। प्लीज मैनेज योर ईबी, इमोशन ब्लास्टिंग एंड बस्टिंग। तो आप जब भी कोई बात रखेंगे लॉजिकल, 90% आप लॉजिकल रहेंगे। फैक्ट्स होना चाहिए आपके पास, यू शुड हैव फैक्ट्स। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कुछ भी बोल रहे, यू आर स्पीकिंग एनीथिंग। प्लीज मैनेज इट एंड बैलेंस इट। एंड avoid using big phrases, avoid using big phrases and words, avoid using making eye contact with the panelist. कभी कभी हमें लगता है कि पैनलिस्ट से आई कांटेक्ट मिलाना है, बट यहां पे उनको एकदम से इग्नोर करना है। पैनलिस्ट आपके पीछे बैठे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेंगे। 3 से 4 लोगों का ग्रुप रहेगा आपके ग्रुप डिस्कशन में, तो प्लीज उनको अवॉइड करिए। जो भी ग्रुप में बैठे हैं उनको आप उनसे बात करिए। और यहां पे सबसे बेहतर अपने पॉइंट रखने का तरीका है, आई हैव अ पॉइंट टू स्टेट। ऐसे कुछ सेंटेंस आप याद रखेंगे। आई हैव अ पॉइंट टू स्टेट, आई वुड लाइक टू, इफ यू अलाउ मी। ऐसे कुछ पोलाइट सेंटेंस रखने हैं आपको। जैसे अगर किसी से डिसएग्री भी कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, आई डिसएग्री विथ यू, यू आर रॉन्ग। हम ऐसे ही बोल देते हैं डायरेक्ट। डिबेट का मतलब, हम ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या समझते हैं? लोगों को नीचा दिखा के अपनी आवाज तगड़ा करके अच्छे से जीत जाओ। नो 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 नो, बी हम्बल, बी पोलाइट, बी लॉजिकल, बी इंफॉर्मेटिव। I think that you are. I just would like to object for this point exactly because you may be wrong here. I would like to restate this point. My point is that the India got freedom in 1947. It was established country, but yes, here it is establishing in a more way. तो आपको उसको एक रीस्टेट करना होगा according to the situation and the scenario. अगर किसी के पॉइंट से आप अग्री कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यस आई अग्री विथ योर पॉइंट बट आई वुड लाइक टू सम अप, क्योंकि आपको अपना पॉइंट जरूर रखना है। ध्यान दीजिएगा जीडी में ऐसा आप नहीं कह सकते कि आई अग्री विथ यू, जो आपने बोल दिया वही पत्थर की लकीर है। नो, सम अप जरूर करना है आपको, क्योंकि आप भी बैठे हैं जीडी में, इंटरव्यू में आप भी बैठे हैं, तो यू ऑल्सो हैव टू गिव योर पॉइंट्स। तो आई अग्री विथ योर पॉइंट बट आई वुड लाइक टू सम अप हियर, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग फ्रॉम माय साइड दैट दिस 2 पॉइंट ऐड। यू गॉट दिस पॉइंट? दैट्स इट। अपने समरी के साथ डिसअग्री करना है, पोलाइटनेस के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सेंटेंसेस जैसे आई ऑब्जेक्ट, हाई टोन में अवॉइड। आई डिसअग्री, ऑब्जेक्ट, अवॉइड। यू आर रॉन्ग, अवॉइड। एज यू नो, अवॉइड। एज यू लाइक, अवॉइड। ये सारी चीजें आपको अवॉइड करना है। गॉट इट? और तीसरी चीज, कोशिश करिए जब आप बैठिए वहां पे तो आप हमेशा ऐसी चेयर लीजिए जहां से पैनलिस्ट आपको अच्छे से देख पाए। डोंट ट्राई टू हाइड योरसेल्फ। अब जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, हाइड हो जाते हैं। यहां पे भी मैं देखता हूं कुछ लोग हाइड, अब जैसे कोने भागते हो ना, कोने में, कोने वाला भागने वाला सीन खत्म। अब आजा बेबी सीन बना दे, नहीं बनाना, राइट? कोने नहीं भागना है, यू हैव टू बी इन फ्रंट, सामने रहना है हमेशा। और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैनल के सामने रहना है, अपनी बातों को रखना है। अगर आपका फर्स्ट आ गया टर्न तो आपको अच्छे से अपनी बातें रखना है। सेकंड आया फिर भी रखा तो चुरा सकते हैं आपकी अदाओं को नहीं। यू हैव योर ओन अदा, आपके पास अदा है। कोई उसी तरीके से पाउट सेल्फी ले रहा है, पाउट सेल्फी आप भी ले रहे हो, दोनों पाउट में फर्क है। आपका पाउट ज्यादा है, उसका पाउट कम। You may be different, आप डिफरेंट हो सकते हैं, and that is why style, maintain your style. और please avoid fake accent. Fake accent एकदम अवॉइड करो। अवॉइड इट। अगर रियल में निकल रहा है, जैसे मेरी तरह निकल रहा है, मुझे भी कभी कभी लोग फेक कह देते हैं। कभी कभी मैं कमेंट पढ़ता हूं तो people call me fake. Oh, this teacher has a fake accent.
राइट, बट इट्स नॉट फेक, इट्स नेचुरल, राइट। फेक होता तो फेक का एक अलग साउंड होता है, वो ऐसे बोलते हैं यस सर, वो कुछ मुंह में अजीब सा, और जैसे फॉरेनर को देखा कभी चश्मा लगा, यस आई वांट टू से दैट इट्स वेरी गुड टू बी द फॉरेनर, ऐसे बोलते हैं, चश्मा हल्का नीचे करके थोड़ा स्टाइलिश मार के, राइट। तो ऐसा आपको बिल्कुल फेक एक्सेंट अवॉइड करना है। अगर नेचुरल एक्सेंट है तो आप नेचुरल दीजिए, और नहीं है तो आप अपनी इंडियन एक्सेंट में ही वो बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं। ट्राई टू टॉक नॉर्मली, यस प्लीज। अदर द डिफरेंट थिंग इज दैट fake accent you have to avoid and illogical points। वो कहते हैं ना, जब सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो पैनल सब देख रहा है, पैनल हर चीज देख रहा है। आप जैसे डिबेट में कोई भी पॉइंट बोले, उस दिन किसी ने 38 करोड़ वाला कितना है, वो अदानी वाला एग्जांपल दे दिया, $1 बिलियन, $300 बिलियन वाला, अमृत ने शायद किसने दिया था, अब वो $300 बिलियन का बोला अमेरिका से कर्ज लिया है, एंड दैट वाज अ फेक स्टेटमेंट। $300 बिलियन, यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इज इट? सामने वाले की तरफ से आया था। अब वो $300 बिलियन, वहां से तो मैं नोट कर रहा था कि कहां से $300 बिलियन ले लिया अदानी ने कर्ज, तो दैट वाज अ फेक स्टेटमेंट। तो फेक स्टेटमेंट ऐसा ना हो कि जीतने के लिए मैं फेक स्टेटमेंट डाल दूं, क्योंकि वो भी नोट हो रहा है, वो आपका माइनस मार्किंग में जाएगा। तो प्लीज अवॉइड इट, इसे आप बिल्कुल अवॉइड करें कृपया। और उसके साथ साथ स्पीड को अवॉइड करें, स्लो को अवॉइड करें, मिड में रहें हमेशा। हमें कभी कभी लगता है कि स्पीड बोल के हम वी कैन विन द कॉम्पिटिशन और द ग्रुप डिस्कशन और द कन्वर्सेशन। नो, एब्सोल्युटली नॉट। एंड वी डोंट नीड टू बी दैट मच स्लो दैट वी गेट बोरिंग एक्चुअली, राइट? We feel like, oh my God, I'm a boring person. No, don't be boring. I would like to state here that India is a good country. इसीलिए ग्रुप डिस्कशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी। इसीलिए लोगों को ये कोर्स करना भी पड़ता है, इंग्लिश स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, बिकॉज इन द जीडी, इन द पर्सनल इंटरव्यू, दे चेक योर फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग, राइट? जरा हमें कोई फेल करके बता, नहीं फेल करेगा। क्यों? क्योंकि लथेड़ देंगे हम। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट, राइट? जहां स्लो होना है, आई हैव माई मॉनिटरिंग, मेरे पास खुद की मॉनिटरिंग है। आपके पास मॉनिटरिंग क्या है? सिचुएशन मॉनिटर आपको करती है, मैं सिचुएशन को मॉनिटर करता हूं। आप अभी आपको कहीं और डाल दिया जाए तो आपको अचानक पसीने आने लगेंगे। अभी मैंने एक वीडियो डाली है, वो बेचारे बैंक में काम करते हैं, उनका प्रॉब्लम है, जैसे मैंने उनके साथ प्रैक्टिस करना चालू किया, पूरा पसीना दर एसी चल रहा है, पसीना आ रहा है। Why? That's the problem. So you have to just trust yourself. No pasina, wali hasina. All right, everybody. So got it? It's very important that how you keep your points. तो फिर से वही फॉर्मूला याद आ जाएगा, किस। Keep it short and simple. Keep it short and simple. किस कर लो अपने कम्युनिकेशन को, किस करो अपनी जीडी को, किस करो प्रेजेंटेशन को। बस ग्रुप डिस्कशन वालों को किस मत कर लेना, राइट? ठीक है, ऐसा करो कि वो आपको किस करने लगे। मतलब कैसे? अपने दिलों से। बड़ी प्यारी सी कहावत है, यू कैन विन द पीपल बाय मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, but we can win their emotions and hearts by making heart contact. तो heart contact is very important. अब heart contact कहाँ से होगा? जब आपकी बात में दम होगा। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हो, क्योंकि आज के क्लास में दम, कल के क्लास में उतना दम नहीं था, तो आप लोग आपस में बात भी कर रहे थे। वो मेरी कमजोरी नहीं थी, लीडरशिप की कमजोरी नहीं थी, मेरे क्लास में वीकनेस थी। आज क्लास मजबूत है तो आप सब लोग सुन रहे हो। तो दिस इज वाई किस करो। एंड अनदर पॉइंट इज दैट you have to understand always about the consistency, कि जब भी आप कोई बात रखो तो कंसिस्टेंट वे में रखो, और जब शुरू करो तो शुरुआत हमेशा एक लॉजिकल, एक फैक्चुअल, एक कोटेशन बेस्ड होनी चाहिए। हमेशा शुरुआत जो है ना, मजेदार होनी चाहिए, बिकॉज 7 सेकंड है आपके पास। 70 मिनट उधर चक दे इंडिया में, इधर 7 सेकंड है। Impress the people. All right. अब जैसे पहले शादी में क्या होता है, मौलाना साहब पूछते हैं कबूल है, लड़की रोती है, कबूल है, पहले रोएगी, फिर अम्मी जब डंडा करेंगी बोलो जल्दी से,
तब वो जाके बोलती है कबूल है। उसको फर्स्ट इंप्रेशन देना ही देना है कि मैं अभी सहमी हुई हूं, मेरे लिए मेरी लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है। अब अचानक वो कह दे, सब कुछ तोड़ के कह दे हाँ कबूल है, आई एम रेडी, चलो बारात। अब वो फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा, कितनी बदतमीज लड़की है, राइट, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर शी हैज, आदमी शक करने लगेगा। हाँ जी कबूल है, शहबाज भाई से, अरे शहबाज भाई से नहीं, शहबाज से मेरा निकाह हो रहा है, कबूल है। अरे तो कह सकती है, उसके मन में आता भी हो, लव मैरिज भी होगी ना तभी वो रोएगी, टाइम लेगी, कंज्यूम करेगी, फिर बोलेगी। बिकॉज ये 7 सेकंड बहुत जरूरी है। आप जैसा ऑडियंस के दिमाग में डालना चाहते हो इसी में डाल दो। यहां पे कर लो इम्प्रेस, सॉरी, फिर सामने वाला नहीं होगा कभी डिप्रेस। You try to understand, right? So these are the points. Anyway, no more philosophy, but more contents. So moving ahead, consistency, quotations. You can start with some questions. All right. You can start with some, incidents. Right. You can start with some news. You can start with some articles. ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत वेटेज हैं, बहुत भारी कहलाती हैं। जब हम एजुकेशनल प्रोग्राम में जाते हैं तो कपड़े पे ध्यान नहीं देते हैं, जब हम पार्टी पे जाते हैं तो कपड़े पे ध्यान देते हैं। दिस इज द वर्स्ट हैबिट ऑफ अस, बिकॉज हमें जो सक्सेस मिलेगी वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट से मिलेगी, ना कि पार्टी और शादी से मिलेगी। बट हम वहां पे पूरा मेकअप, पूरा सब कुछ कर डालते हैं कि हाउ कैन आई इंप्रेस द पीपल, जो कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा किसी का मोबाइल नंबर और खाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यहां पे जो आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, और पैसा चाहिए जमाने में। लेकिन हम वही गलती करते हैं। आप अपने आप से पूछ लीजिए, जहां 10,000 का, 5,000 का कपड़ा आप पहन के जा रहे हैं, वहां यहां आएंगे 300 का पहन के। या आप कंपनी में जाएंगे कहीं इंटरव्यू देने, आप उतना ध्यान नहीं देते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रेस टू फ्रेश, ड्रेस टू फ्रेश, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी ड्रेस पहनो, आई एम वेयरिंग दिस, आई एम गोइंग टू सक्सीड, मैं ये इसलिए पहन रहा हूं, मैं सफल होने जा रहा हूं। और ड्रेस गिव्स यू कॉन्फिडेंस। नो मैटर मैं साड़ी पहन रहा हूं, लहंगा पहन रहा हूं, शॉर्ट्स पहन रहा हूं, क्या पहन रहा हूं, बट जो मैं पहन रहा हूं, वाइब आ रही मुझे, आई मस्ट फील कॉन्फिडेंट। अभी जैसे जो मैं पहना हूं और आपका आई कॉन्टेक्ट जो होता है वो कहीं या तो यहां होता है या तो कहीं और होता है, दैट्स बैड। मेंटेन इट। ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में मेंटेन करेंगे। तो ड्रेस टू फ्रेश एंड ऑलवेज एड्रेस ऑल्सो। ये तो मजाक किया मैंने, बड़ी प्यारी सी लाइन थी कि ड्रेस एंड एड्रेस डिटरमाइन योर फ्यूचर। ड्रेस एंड एड्रेस डिटरमाइन योर फ्यूचर। और ये हकीकत है, जिस एड्रेस में आप रहते हैं वो एड्रेस आपके माइंड को खा जाएगा, क्योंकि वहां की लोकेलिटी, वहां का कैसा माहौल है। आप सादरा रहते हैं, मंडावली रहते हैं, लक्ष्मी नगर रहते हैं, सीपी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उसी हिसाब से आपका माइंड सेट डेवलप होता चला जाएगा। तो ड्रेस एंड एड्रेस। लुंगी पहनेंगे, लुंगी वाली फीलिंग आएगी। चड्ढा पहनेंगे, चड्ढे वाली फीलिंग आएगी। पैंट पहनेंगे, पैंट वाली फीलिंग आएगी। तो अपना अपने आपका जो है कि फीलिंग है, एक इमोशन है। अंडरस्टैंड? एनीवे, एनी क्वेश्चन? नो? दिस थिंकिंग ना, एंजॉय द प्रेजेंट ना। प्रेजेंट आप एंजॉय नहीं करते हो। यू आर लाइक समवेयर एल्स। यू आर अ लूजी पर्सन। डोंट डू दैट, एंजॉय। How to do that ना? स्ट्रेस माइंड कभी मत लेके आओ। घर से निकलो, स्ट्रेस पूरा वहीं रिलीज करके निकलो, राइट?